ایران کیا کر سکتا ہے ابھی تک؟ جو آپ کے تبصرے کے مطابق اور جو حقائق بتا رہے ہیں وہ یہ کہ اتنی مربوط پلاننگ تھی اسرائیلی ایجنسی اور اس کی فورسز کے درمیان کہ ایران سنبھل نہیں سکا اور اس کی ساری تیاریاں ریت کی دیوار ثابت ہوئیں، یہاں تک کہ چکمہ دیا گیا اسرائیلی وزیراعظم ہاؤس کی جانب سے ایرانی حکام کو کہ وہ یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ رات کے اس پہر بھی یہ اٹیک ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اسرائیل کا یہ الزام لگانا کہ ایران ایٹمی بم بنا سکتا ہے یا نیوکلیئر بم کے قریب پہنچ چکا ہے، دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ ایران کے پاس نیوکلیئر بم نہیں ہے، دونوں بیانات ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتے۔ ایران دردناک انتقام کی بات کر رہا ہے، جہنم کا دروازہ کھولنے کی بات کر رہا ہے، مزہ چکھانے کی بات کر رہا ہے۔ ایران کیا کرے گا اس کے بعد؟ اس وقت تو ایران کے پاس آپشنز بہت لمیٹڈ ہے میرا خیال۔ دیکھیے ابھی پہلی خبر تو یہ ہے کہ انہوں نے ڈرونز لانچ کیے ہیں اگینسٹ اسرائیل۔ پتہ نہیں کب کے وہ چلے ہوئے ہیں ڈرونز اور کب پہنچیں گے، اور راستے میں ایران کے جو دشمن ملک ہیں یا جو امریکن الائز ہیں یا اسرائیل کے الائز ہیں، جارڈن ہو گیا، عراق ہو گیا، وہاں ان میں سے میجورٹی تو وہیں شوٹ ڈاؤن کر دی جائے گی۔ ڈرونز آر سلو فلائنگ آبجیکٹس، اینڈ سو آئی تھنک وہ جو اٹیک ہے وہ تو کچھ حد تک ریپلس ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایران از تھریٹنگ ٹو لانچ missiles. They have long range missiles and they can launch them. مگر اسرائیل کا جو ڈیفینس سسٹم ہے اگینسٹ missiles is also very strong. اور راستے میں again they will be attempted with American help to defuse them. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ایران تھریٹن تو کر رہا ہے کہ نیوکلیئر جیسا رسپانس ہم کریں گے، بٹ ابھی ان کے پاس نیوکلیئر ویپن نہیں ہے۔ ابھی وہ there are some screwdrivers turn away from the weapon. پھر وہ ویپن کے علاوہ بھی اس کی لانچ کا بھی ہوتا ہے، اس کی ٹریگر کا بھی ہوتا ہے، and all these issues. اور ابھی یورینیم انریچمنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں 50 سے 60% ہوئی ہے۔ اس کو to make a good bomb you have to go up to 90%. ڈرٹی بام تو آپ کر سکتے ہیں 70% پہ بھی، بٹ آئی تھنک ایران از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو یوز نیوکلیئر ویپنز رائٹ ناؤ۔ تو اسی لیے پریمپٹیو اسٹرائک کی ہے اسرائیل نے، اینڈ آئی تھنک اٹس بین لارجلی سکسیسفل۔ اب ایران کرے گا کیا؟ اگر ایران امریکن انٹرسٹ کو، امریکن بیسس کو، امریکنس کو اٹیک کرتا ہے ان دا مڈل ایسٹ، تو پھر امریکہ ڈائریکٹلی انوالو ہو جائے گا۔ ابھی وہ انڈائریکٹلی انوالو ہے، بیکاز ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتا ہے کہ اگر اس کو ہم نے ایران کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور ریجیم چینج کر لیتے ہیں، ڈسٹروائے نہیں کرتے، لائک دے ڈسٹروائڈ لیبیا، لائک دے ڈسٹروائڈ ٹو بگن ود عراق، اینڈ دین دے ڈسٹروائڈ دی ادر کنٹریز، سیریا فار ایگزامپل، تو دیٹ از دا پریفرڈ آپشن۔ مگر اگر وہ نہیں ہے تو اگر انہوں نے امریکن انٹرسٹ کو اٹیک کیا، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے، اور جس میں ایویڈنس بھی ہے کہ the Americans were involved in aiding and abetting Israel, تو پھر I'm afraid this will become bigger and they will foment chaos in Iran, assassinations in Iran, bombings in Iran, separatist movements in Iran۔ ایک نیا سیناریو شروع ہو جائے گا۔ آپ کو یاد آ جائے گا عراق میں جو انہوں نے کیا تھا اور جو سیریا میں ہوا، دیٹ از ہاؤ یہ ڈسمینٹل کرتے ہیں۔ اور سیریا جیسا اتنا بڑا ملک with a great history and ancient civilization. Iraq, same way. So Iran is also in the same situation. اور ٹھیک ہے، it's a bigger civilization and so on, and a stronger country and very motivated. But at the end of the day آپ نے دیکھا کہ کس قسم کا ریئیکشن یا رسپانس آیا from the international community. Very interesting. پاکستان نے کنڈیم کیا ہے، جی، سعودی عربیہ نے کنڈیم کیا ہے، یو ای نے کنڈیم کیا، او آئی سی بھی کنڈیم کرے گی، مگر یورپین نیشنز نے انہوں نے کنڈیم نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایسکلیشن کو روکا جائے۔ یہ از ویری انٹرسٹنگ۔ وہ ہر ایک کا بیان یہ ہے کہ ایسکلیٹ نہیں ہونا چاہیے، روکو، ایسکلیشن نہیں ہونی چاہیے، ایسکلیشن نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہوا ہے یا یہ کنڈیم کیا ہے اوپنلی، لائک پاکستان نے جیسے کیا یا ایون سعودی عربیہ نے جیسے کیا۔ تو آئی تھنک اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ دس از ڈونلڈ ٹرمپس پلان کہ ایسکلیشن کو روکا جائے، اور روک کے پھر ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ امریکہ اینڈ دی انٹرنیشنل کمیونٹی پلے سم رول، جس میں ریجیم چینج بھی ہو جائے، ایران کی لمبی چوڑی ڈسٹرکشن نہ ہو، مگر نیوکلیئر پروگرام فار ایور اینڈ فار ایور ختم کر دیا جائے۔ دیٹ وڈ بی دی موٹیو بیہائنڈ دس کہ ایسکلیٹ نہ کریں، بیکاز اشارہ کس کی طرف ہے؟ اسرائیل نے تو جو کرنا تھا کر دیا اور وہ کرتا جائے گا۔ وہ ایران کو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نہ رسپونڈ کریں،
जैसे पाकिस्तान को कहा था जब इंडिया ने किया तो एस्केलेट ना करें। अच्छा, अब बात यह है कि ईरान ने फैसला कर लिया जैसे पाकिस्तान ने किया था कि हमने हिट बैक तो करना है। अब वो हिट बैक अगर ज्यादा कामयाब हो जाता तो फिर एस्केलेशन हो जाएगी फ्रॉम द इजरायली साइड, और अगर कंस्ट्रेंट रहता है, रिस्ट्रेंट रहता है, तो फिर शायद स्पेस फॉर डायलॉग एंड सीज फायर कैन टेक प्लेस। अच्छा, लेकिन सिर साहब, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मामला था, इसराइल और ईरान, इसमें ईरान बहुत कमज़ोर मुल्क है जिसमें अंदरूनी कशमकश भी अपनी जगह अहम है। आपने माजी का भी हवाला दिया, चैलेंजेस अंदरूनी तौर पर क्या रहे, माशी दबाव अपनी जगह पर अहम है। तो सिट साहब, ईरानी अवाम स्पेशली अगर इस तरह से जंग लगती है और वहाँ मुजाहरे शुरू हो गए हैं और बदला लेने का कहा जा रहा है, हुकूमत पे दबाव अंदरूनी तौर पर बढ़ाया जा रहा है, अवाम किस हद तक हुकूमत के साथ होगी और रजीम चेंज के लिए कितने हालात साजगार हैं ईरान के अंदर? जी हाँ, बहुत अहम सवाल है। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है ईरान के अंदर। ईरान के अंदर ये जो रेजीम है ये ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बिकॉज बड़े इस रेजीम की फॉरेन पॉलिसी के बेस के ऊपर, रेडिकल इस्लामिक पॉलिसी के बेस के ऊपर बहुत सी सफरिंग की गई है ईरान की इकोनॉमी ने, ईरान के लोगों ने। सैंक्शंस लगे हैं और इन्फ्लेशन है और अनएम्प्लॉयमेंट है, हालात अच्छे नहीं है ईरान के अंदर, एंड लोग तंग भी आए हुए और बड़ी घुटन है वहाँ, इस पर कोई शक नहीं है। तो इस रेजीम बड़ी ऑप्रेसिव रेजीम। अच्छा, अब ये एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ये है कि वो एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, एक नेशनलिज्म जो है, पर्शियन इरानियन नेशनलिज्म इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो जब ये फॉरेन इंटरवेंशन होती है इस किस्म की, तो उस वक्त वो नेशनलिज्म उभरती है। आपने देखा पाकिस्तान के अंदर भी कि जब ये इंडिया ने अटैक किया तो सारी फोर्सेस इकट्ठी हो गई, इवन द ऑपोजिशन, पीटीआई वगैरह। तो ये एक नेशनलिज्म का इजहार होता है। अब ईरान के अंदर भी ये दो कशमकश चलेगी। एक तरफ ऑपोजिशन, वो देखेगी कि अभी क्या हमारा मौका बन रहा है, क्या अब हमें रेजीम चेंज की तरफ जाना चाहिए और आयतुल्ला की जो रेजीम है, इस्लामिक रेजीम को खत्म करके एक सेकुलर रेजीम की तरफ जाना चाहिए, डेमोक्रेटिक रेजीम की तरफ जाना चाहिए, जो कि अमेरिका को और वेस्टर्न को बड़ा खुश करेंगे। इस किस्म के लोग जो है उनको शायद पीछे से सपोर्ट भी मिले। दूसरा ये कि क्या फिर खड़े हो जाए अमेरिका के खिलाफ। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग वहाँ इस्लामिक रेडिकल्स हैं वो तो जाहिर है यही कहेंगे कि अटैक करें। बट मेरा ख्याल है कि जो लोग चाहते हैं कि एंड ऑफ दिस रेजीम, वो थोड़े नहीं हैं, वो साइलेंट जरूर हैं, मगर दे आर क्वाइट फेड अप विद दिस रेजीम आल्सो। तो ये कशमकश चलेगी। अब देखना ये है कि ये लोग किस तरीके से, इनकी जो हुकूमत है, ये जो लीडरशिप है, वो किस तरीके से इसको हैंडल करती है। सो आई कांट से, बट व्हाट आई कैन से इस बहुत से छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो कि अमेरिका के साथ राब्ते में हैं, जो कि ऑपोजिशन के ग्रुप्स हैं। इंटरनल ऑपोजिशन तो नहीं है कोई भी, मगर एक्सटर्नल ऑपोजिशन जरूर है, सेपरेटिस्ट्स हैं, और उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, बिकॉज अब अमेरिका और यूरोप जो है उनकी तरफ जाएंगे, रुझान होगा। जैसे आपने देखा कि सीरिया के अंदर क्या हुआ। सीरिया के अंदर एक आदमी, एक शख्स, एक सियासी जमात जिसको टेररिस्ट जमात कहा जाता था, उसके लीडर के ऊपर $10 मिलियन का रिवॉर्ड था बाय अमेरिका, और यूनाइटेड नेशंस की टेररिस्ट लिस्ट के अंदर उनका नाम था। रातों रात वो सारा कुछ खत्म कर दिया गया, वो प्रेसिडेंट या लीडर बन गए सीरिया के, और इस वक्त अमेरिका के MIT है और उनको एड भी मिलनी शुरू हो गई। तो बात यह है कि ये चीजें होती हैं इस किस्म की सिचुएशन में। अब जो रेजिस्टेंस है ईरान के अंदर, जिसको अब यकीनी तौर पे हवा मिलेगी और सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम द वेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट उसमें से इज एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईरान। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर बहुत से छोटी छोटी जमातें हैं, मगर इसके पीछे जो है, जो सोच थी एक जमाने में, वो मुजाहिदीन खल्क की थी। अब हम लोगों को याद है कि जब अयतुल्ला खोमेनी आए ईरान के खिलाफ, जब महाज बना और रेजिस्टेंस मूवमेंट बनी, तो उस वक्त मुजाहिदीन खल्क जो थी वो शाना बशाना सबसे आगे थी, और वो एक लेफ्ट विंग मार्क्सिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। मगर फिर अयतुल्ला ने आ गए, और जैसे ही पावर सीज किया अयतुल्ला खोमेनी ने, इस्लामिस्ट ने, तो मुजाहिदीन खल्क को उन्होंने आइसोलेट कर दिया और वो भागे हुए वहां से, बिकॉज वो इंटरनल स्ट्रगल शुरू हो गई थी। अच्छा, तो अब वो मुजाहिदीन खल्क जो है, दे काफी अरसे तक तो वो लेफ्टिस्ट आइडियाज, मार्क्सिस्ट आइडियाज को वो प्रोपगेट करते रहे, बट आई थिंक उन्होंने भी देख लिया कि दुनिया किस तरफ जा रही है, स्पेशली
सोवियत यूनियन नहीं रहा, ईस्टर्न यूरोप नहीं रहा, एंड सो ऑन. एंड सो देयरफॉर उन्होंने ये रेजिस्टेंस काउंसिल बना ली है, जिसके अंदर जिसकी लीडर वो पुरानी लीडरशिप है ऑफ द मुजाहिदीन खल्क, मसूद और मरियम रजावी. ये कुछ अरसे पेरिस में होते हैं, कभी वो अल्बानिया में बेस किया हुआ है इन्होंने. और अब जो मेरी इतला है वो ये है कि अमेरिकन आर इन टच विद देम, स्पेशली मरियम रजावी, जो कि उसकी अहलिया थी मसूद की. तो वो अब इस वक्त जो बातें कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं हम डेमोक्रेटिक ईरान बनाना चाहते हैं, हम इलेक्शंस करवाना चाहते हैं, हम एक सेकुलर किस्म की कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाहते हैं, इस किस्म की बातें कर रहे हैं. हम ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हम सियासी प्रिजनर्स को रिलीज करना चाहते हैं, एटसेट्रा. तो ये बातें तो जैसे कहते हैं ना, दिस इज म्यूजिक टू द ईयर्स ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज. इसी तरीके के साथ वो सीरिया के जो लीडर हैं उन्होंने भी फिर आखिरी वक्त पे ऐसी बातें करनी शुरू कर दी थी, इसलिए फिर उनको भी तस्लीम कर लिया गया. तो इसके अलावा देयर आर सम सेपरेटिस्ट पार्टीज. ये तो है ना जो ईरान को इकट्ठा रखना चाहती है, मगर वो सेपरेटिस्ट पार्टीज भी हैं जिसके साथ अमेरिका के तल्लुकात हैं. एक तो खैर जाहिर है वो कुर्दिस्तान फ्री लाइफ पार्टी है, और इसके साथ साथ कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी है. अब कुर्दिस्तान का तो एक और ही मामला है, कॉम्प्लिकेटेड है. वो टर्की में भी है, इराक में भी है, ईरान में भी उनका हिस्से है, बट दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द रेजिस्टेंस. इसी तरीके के साथ बलोच लिबरेशन सेपरेटिस्ट के भी दो हिस्से हैं. एक है बलोच ग्रुप जुदुल्ला, जिसके बारे में सबने सुना है, वो सिस्तान के अंदर है. और दूसरा है जैश अदल, वो भी एक बलोचों का ग्रुप है, ये भी ईरानियन में ऑपरेट करते हैं. इनके साथ भी अमेरिका इनके साथ रास्ते में है. और फिर एक छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, जैसे पीपल्स फिदायीन गुरिल्ला ग्रुप है, वो भी लेफ्टिस्ट है. नेशनल लिबरेशन मूवमेंट, एक छोटी सी जगह है आवाज, वहाँ एक सेपरेट प्रोविंस, एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट वहाँ भी है, नेशनल लिबरेशन मूवमेंट है. और एक और फाइनली कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर एक ग्रुप बैठा हुआ है जिसका नाम है रिस्टार्ट. वो राइट विंग ग्रुप है जो कि रिपब्लिकन पार्टी के बड़ा करीब है. तो मतलब है कि इस किस्म की खिचड़ी जो है ना, अब वो पकी हुई है. अब वो किसको उठाते हैं, किसको लेके जाते हैं, आपको याद होगा अफगानिस्तान में भी ऐसी हुआ था ना, करजई, और उसके बाद फिर आपने देखा गनी आ गया, एंड सो ऑन. तो वहां भी इसी किस्म की चीज थी. और अब यहाँ भी अमेरिका जो है ये पर फैलाएगा और ऐसे लोगों के साथ रास्ते में जाएगा कि किसी तरीके के साथ एक इंटरनल थ्रेट भी होनी चाहिए. अगर रेजीम चेंज करनी है तो किसको लाना है, एंड सो ऑन. ठीक है, तो आई थिंक दैट्स द सिनेरियो.